Hello friends, students, today I am starting a new chapter of life process and that is excretion. Excretion. What is excretion? Separation. Separation and elimination of harmful toxic metabolic wastes is called excretion. Second, it helps to maintain homeostasis. ये होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इन बाहर के एनवायरनमेंट से इसको कोई मतलब नहीं है, ये अंदर के शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, एंड दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस. To maintain the internal environment of the body, despite of the changes takes place in the external environment, and that is known as homeostasis. क्यों जरूरी है excretion? Excess of metabolic wastes. Excess of metabolic wastes can be toxic, resulting into discomfort, disease, and ultimately death. Disease, अगर ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक CO2, लाइक यूरिया, लाइक यूरिक एसिड, लाइक अमोनिया, ये सब कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और टॉक्सिक हैं, ये अगर हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा और इनका डिपोजिशन हो जाता है तो एक्सेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कैन बी टॉक्सिक, रिजल्टिंग इनटू डिस्कम्फर्ट. अजीब लगता है महसूस, जैसे दम घुटने से कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में जाए तो क्या होता है, दम घुटने लगता है, सफोकेशन, डिजीज, बीमारी पैदा कर सकते हैं और ज्यादा हो जाने से डेथ हो जाती है. That's why excretion is necessary, right? Or the new chapter we are studying is known as excretion. Excretion, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना. There is a difference between excretion and ejection. We will discuss it later on. हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे. What is the difference between ejection and excretion? Ejection during holozoic mode of nutrition हम लोगों ने पढ़ा है ingestion, digestion, absorption, assimilation and ejection. During by the process of ejection जितने भी undigested food है वो जो after digestion के बाद digestion has been completed, उसके बाद वो they enter into large intestine where water has been absorbed and then convert into a fecal matter, and that is what is fecal matter? That undigested food with along with there lots of enzymes और बहुत सारी चीजें रहते हैं, and that has been expelled out through the anus, and that is known as ejection. But it is that is not metabolic waste, and that is excretion. ठीक है, बाद में लोग पढ़ेंगे उसको, ये excretion और ejection में क्या अंतर है. ठीक है, हम लोग we will discuss it later on. तो separation, शरीर से सेपरेट किया, and elimination of harmful toxic metabolic waste like urea, carbon dioxide is called excretion. It helps to maintain homeostasis. Excess of metabolic waste can be toxic, resulting into discomfort, disease, and death. Let us discuss about some excretory products. अब हम लोग कुछ excretory product के बारे में बात करते हैं और उसके अनुसार
जीवों को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको ग्रुप में बांटा गया है। इफ दे कुछ excretory products, excretory products, पहला है excretory प्रोडक्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट। याद कीजिए ड्यूरिंग डाइजेशन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलर प्रोडक्ट दैट इज नोन एज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड द ओनली न्यूट्रिएंट, द अकेला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन इज एब्सेंट इन कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज फैट। फैट और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। द ओनली न्यूट्रिएंट इन विच जैसा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट है, एंड दैट इज प्रोटीन। उसमें से उसी के मेटाबॉलिज्म से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते हैं that have been eliminated in the form of urine, that is a nitrogenous waste. These wastes have been produced by the breakdown of protein। ये किस चीज के ब्रेकडाउन से बनते हैं? प्रोटीन। एंड दे आर एज फॉलोज। पहला है अमोनिया NH3। अमोनिया it is very simple inorganic compound। ठीक, it is very simple organic compound। It diffuses rapidly, ये बहुत तेजी से डिफ्यूज होता है। थर्ड, इट इज soluble in water। It is soluble in water। Most of the aquatic invertebrates, excrete ammonia। And the animals which excretes ammonia are called ammonotelic। are called ammonotelic। क्या कर रहे हैं? पहला एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है? हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। उसमें the waste has been produced by the breakdown of protein। याद कीजिए, मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, प्रोटीन
amino acid, trypsin, deamination, अमोनिया। ये सीक्वेंस है प्रोटीन के ब्रेक डाउन का। प्रोटीन इस फर्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन हुआ तो पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ, नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जब ब्रेक हुआ तो इससे अमोनिया बना, और इसी यही अमोनिया बाद में जाकर के यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और यूरिया यूरिन में। This is the sequence of nitrogenous waste in human, especially in human. प्रोटीन फर्स्ट स्टेप में पेप्टोन में, पेप्टोन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, उसके बाद इसमें से डीएमिनेशन होता है जो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया फिर लीवर उसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और यूरिया यूरिन के फॉर्म में शरीर से एक्सक्रीट आउट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट। इसमें एक लाइन आप चाहिए तो सिंपल, हाईली टॉक्सिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया, क्योंकि ये सोल्यूबल है वाटर में। ये इनऑर्गेनिक है, बहुत सिंपल कंपाउंड है, लेकिन बहुत हाईली टॉक्सिक है। दिस इट डिसॉल्व इन वाटर, इसलिए इसको इमीडिएट एक मॉडरेट लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट कर देता है हमारा लीवर, राइट। पहला है नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड दैट इज नोन एज अमोनिया। एंड अमोनिया इज जो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड अमोनोफिल। Next nitrogenous waste is urea. Next nitrogenous waste is known as urea. हम लोग सब लोग ह्यूमन स्पेशली यूरियोटेलिक हैं. We excrete urea in the form of urine. Ammonia, it is highly toxic, soluble in water. इसको आप से समझिए, फिर से बताते रहे. प्रोटीन, पेप्टोन, एमिनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, इसको ध्यान रखिए. जितने भी प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन बाय पेप्सिन. पेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और बहुत सारे. एंड इसके बाद इसका डीएमिनेशन होता है and that is converted into ammonia, and ammonia is converted into urea. It is highly toxic. It is less toxic. ये कौन में कन्वर्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया of liver cell. Mitochondria of liver cell converts this highly toxic ammonia into very less toxic urea, and that is eliminated by our kidney in the form of urine, right? Pepsin, stomach. Trypsin, small
intestine. Deamination, अमीनो एसिड का अमोनिया उससे हटा दिया गया, and that is form ammonia, right? And this is the formation of urea. Let us discuss about something more about urea. It is comparatively less or moderate toxic substance which is soluble in water. ये अमोनिया के अपेक्षा ये लेस टॉक्सिक है और कम। अमोनिया अगर शरीर में रह जाए तो आदमी की बहुत इमीडिएट मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकता है। लेकिन यूरिया हमारे शरीर में हमेशा फॉर्म होता रहता है। जितने भी प्रोटीन सब्सटेंस है, चना है, दाल है, जितने भी पल्सेस हैं, सोयाबीन है, हाईली प्रोटीन सब्सटेंस और भी बहुत सारे प्रोटीन के जो स्रोत है, हमारे न्यूट्रिएंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अगर उसको आप लेते हैं वो कन्वर्ट होता है, फाइनली कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है तो अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। हाईली टॉक्सिक इज अमोनिया एंड कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस टॉक्सिक इज यूरिया। It is the main excretory product of terrestrial vertebrates. I'm sorry, not terrestrial, vertebrates कहिए इसको, क्योंकि बहुत सारे मछली भी जो है एक्वेटिक एनिमल्स भी लाइक फिशेस, amphibians, mammals, क्या है? It is a comparatively less and moderate toxic substance which is soluble in water. It is the main excretory product of vertebrates like fish, amphibians and mammals, etc. And third, the animals who excretes urea are called ureotelic. जो अमोनिया एक्सक्रीट करते थे उसको अमोनोटेलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था अमोनिया के बारे में, दूसरा पढ़ा यूरिया के बारे में। थर्ड वन is uric acid. Third one is uric acid.
यूरिक एसिड। तो सबसे पहले जो एनिमल यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं उसको? यूरिकोटेलिक। द एनिमल्स हु एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। It is insoluble in water. ये वाटर में insoluble होते हैं, so they are excreted. They are excreted in the form of pastes or pellet. It is mainly found in reptiles, birds, snails, and some insects. इस टाइप के ज्यादा फाउंड इन reptiles, birds, snails and some insects. Lizard, छिपकली, आपने उसको स्क्रीट करते हुए देखा होगा। यूरिकोटेलिक। These are all about the nitrogenous waste. दूसरे जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इनकी भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की एक्टिविटी प्रोडक्ट का, उसमें जो हम लोगों ने पहला पढ़ा वो नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने टाइप के? 3 टाइप। कौन कौन पढ़े? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्या क्या पढ़े? अगर इसको नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या पढ़े हम लोग? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। दूसरा जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है that is carbon dioxide, and that is carbon dioxide. और कहीं कहीं आप किताबों में पढ़ेंगे and water. You feel water vapors that have been excreted out during inhalation on the surface of our spectacles, right? These are the excretory products. During cellular respiration, याद कीजिए C6H12O6 plus O2 CO2 H2O plus 38 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 and water, राइट? तो इसके बारे में ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन CO2 and water are released by the oxidation of
fuel, glucose, अभी हमने इसका जिक्र किया C6 एस्टर O6 प्लस O2 माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 plus H2O plus 38 ATP and these are, ठीक है। ये भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। Excess salts and water, sweating, पसीना, they are also excreted through sweat glands of skin. Sweating, third one is excess salts and water also excreted through the sweat glands of skin. Process is sweating. शरीर से पसीना के रूप में excess नमक और excess water that has been excreted out. अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक सेल सरफेस से यूनिसेलुलर में होता है, दूसरा पढ़ा गिल्स के द्वारा ब्रैंकियल, तीसरा पढ़ा स्किन के द्वारा क्यूटेनियस, चौथा पढ़ा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, पांचवा पढ़ा लंग्स का जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है फ्लेम सेल्स। आपको अगर याद होगा इन 9th में जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा फ्लेम सेल्स के बारे में, एंड दैट प्रेजेंट इन प्लेनेरिया या प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस ग्रुप के जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है फ्लैटफॉर्म्स के ग्रुप में, उसमें ज्यादातर जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का नाम दैट इज नोन एज, चलिए इसको हम कर देते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिंथेस ग्रुप? एग्जाम्पल प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक,
फ्लेम सेल्स इन वर्टिब्रेट्स। दूसरा आता है ग्रीन ग्लैंड्स। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स में ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स crustaceans like lobster, crabs, etc. ऐसे ग्रुप में प्रॉन, प्रॉन crustaceans, green glands. थर्ड वन थी सेल सरफेस। इसके बारे में तो बोलना बेकार है। सेल सरफेस है प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक। बॉडी सरफेस यानी सेलेंट्रेटा एंड पॉलीफेरा। ये पॉलीफेरा और सेलेंट्रेटा यानी स्पॉन्जेस, हाइड्रा एग्जाम्पल है। ग्रीन ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस, सेल सरफेस प्रोटोजोआ, बॉडी सरफेस इन पॉलीफेरा, सेलेंट्रेटा एग्जाम्पल पॉलीफेरा का, स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। ठीक है। मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। These are some excretory organs of invertebrates. Now, excretory organ of vertebrate. पहला है लंग्स, दूसरा है स्किन, तीसरा है लीवर एंड चौथा है किडनी। ये चार हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वर्टिब्रेट्स। लंग्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या एक्सक्रीट करते हैं? CO2 एंड H2। स्किन एक्सेस salts and water from sweat glands। लीवर से ये बाइल जूस लीवर convert ammonia into urea। इसके अलावा it also excrete excess cholesterol
कोलेस्ट्रॉल एंड ड्रग्स। आप याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे 9th में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है सेल चैप्टर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ, एसईआर एंड आरईआर। एसईआर में लिखा होता याद है, डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। एसईआर प्रेजेंट इन लीवर सेल्स, डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी, they excrete out the toxins in the form of drugs, the pesticide we taken during the food, along with they come in our body along with food, जो सब्जी फल जो कुछ भी शरीर में जाता है खेतों से निकल करके, नहीं हम लोग फ्रीक्वेंटली भी यूज, किसान फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हर पे जितने टाइप के पेस्टिसाइड्स हैं, they enter into our food through the, they enter into our body through our food। तो वो जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है, they have been excreted out through the liver, ठीक है। इसके अलावा एक काम ये और करते हैं, ये लीवर ब्रेक्स ओल्ड आरबीसी, ब्रेक्स hemoglobin of old RBC into serum into bilirubin and biliverdin into bile salts, and bile pigments, I'm sorry, bile pigments, which are passed into alimentary canal with bile juice। ये हमारा क्या है, लीवर। पहला हमने कहा लंग्स के बारे में, दूसरा स्किन के बारे में। एक्सेस सॉल्ट पसीने के रूप में हमारे शरीर से जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो हमने बताया लंग्स के थ्रू अभी अपने आप को चश्मे पर दिखलाया कि कैसे वाटर हैज बीन एक्सक्रीटेड आउट। उसके बाद कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, इट आल्सो एक्सक्रीट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड ड्रग्स। हमने बताया एससीआर के बारे में। लीवर ब्रेक्स द हीमोग्लोबिन ऑफ ओल्ड आरबीसी। आरबीसी का आपने बताया लेफ्ट, उसका स्पैन ऑफ लाइफ 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी मरने लगता है स्प्लीन में जाकर के, और वहां का हीमोग्लोबिन अगेन ब्रेक्स इनटू दो पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में जाता है। ये फिर अगेन फिर हीमोग्लोबिन बनाने में काम आते हैं। दैट इज एक्सक्रीट आउट बाइल जूस। दीस आर सम एक्सक्रीटरी। अब हम and last one, the main excretory organ of human is kidney. Now let us discuss more about kidney. Let us discuss more about kidney. Kidney. Number 1 pair. दूसरा shape, bean shape, राजमा के जैसा होता है। राजमा के जैसा कलर होता है, वैसे ही कलर
रेडिश ब्राउन। इसके दो फेस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। और इसी से ये दो ट्यूब निकलते हैं। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट किडनी यू हैव टू एकोमोडेट लीवर। लीवर को उसको एकोमोडेट करना है, इसलिए थोड़ा नीचे रहता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर रहता है। दोनों से ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लडर, जिसमें यूरिन आकर जमा होता है, एंड दैट इज यूरेथ्रा। जहां से यूरिन शरीर से बाहर जाता है, एंड दैट इज आवर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है। लोकेशन कहां पर होते हैं अभी हमने बताया। लोकेशन ये हमारा एल्बो जहां टच करता है, हमारा एल्बो जहां टच करता है, ठीक इसके पीछे इस वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड एक किडनी और एक किडनी रहता है। ठीक है। Vertebral column with concave face। ये का कॉन्वेक्स फेस है, ये कॉन्केव फेस है। विथ कॉन्केव फेस, विथ कॉन्केव सरफेस, सरफेस फेसिंग इट। ठीक है। नंबर इज नंबर कितना 1 पे। शेप कैसा, बीन शेप, राजमा के जैसा। कलर कैसा, डार्क रेडिश ब्राउन, याद कीजिए। लोकेशन लाइज 1 किडनी ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विथ कॉन्केव सरफेस फेसिंग इट। हमने डायग्राम बना दिया। ये इंसान कॉन्केव फेस है, कॉन्केव फेस है, और ये कॉन्वेक्स फेस है। ठीक है, अलग अलग कलर से हमने बनाया।
concave face always facing towards the, and that is vertebral column. ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अदर साइड एक एक इधर और एक इधर, ठीक है। Right kidney is placed slightly lower than left kidney to accommodate liver. क्यों? ये लीवर को एकोमोडेट करते हैं। हिस्टोलॉजिकली किडनी is made up of millions of fine, very fine, branched and highly coiled functional unit called uriniferous tubules or nephron. Nephron. Histologically, kidney is made up of millions of very fine, branched and highly coiled functional unit called uniferous tubules or nephron. ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में। What is nephron and how does it work?
capsule and glomerulus. 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 इसको जरा और बड़ा हम लिखें, Bowman's capsule. Glomerulus have two again afferent arteriole and efferent arteriole. Renal tubules is again divided into three parts: proximal, convoluted tubule. In short form it is known as PCT. आगे हम जब भी लिखेंगे तो PCT ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. सेकेंड इज लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड इज डिस्टल convoluted tubules. इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में. तो किडनी के अलावा तीन स्ट्रक्चर और पढ़ना है: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ये चारों मिलकर के हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. हम सिर्फ किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं. जो मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है दैट इज नोन एज नेफ्रॉन. एक किडनी में 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं और हर नेफ्रॉन अपने आप में हमारे शरीर से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट और दूसरे सब्सटेंस को निकाल करके शरीर से बाहर फिल्टर स्क्रीन आउट करता है. इसके बारे में पढ़ते हैं. Let us draw a diagram. उसको पहले हम थोड़ा इसके बारे में समझें. हमारा जो नेफ्रॉन है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of kidney. Nephron, it is also known as uriniferous tubules और कहीं uriniferous tubules लिखा रहे तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है. नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम है. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है. एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं which helps in the ultrafiltration of nitrogenous waste. हेलो, प्रणाम. सर आज तो हमारा पानी ही है. नहीं प्लास्टिक वाला. ओके. ठीक है. तो नेफ्रॉन को दो भागों में बांटते हैं: मैल्पिजियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल्स. आसान रहेगा बाइफरकेट करके. मैल्पिजियन बॉडी फिर अगेन डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चर:
Bowman's capsule, it is a cup-like structure. It is a double-walled cup-like structure. And glomerulus, glomerulus कुछ नहीं है, एक bunch of blood capillaries. जैसे बाल जब टूटता है ना, या आप ऊन का कोई उलझा हुआ कोई आप गोला देख लीजिए, इसमें दो एंड है, कुछ वैसा ही एक एंड से ब्लड आता है, दूसरे एंड से निकलता है, और उसी उलझे हुए को बंच ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसी के चूंकि ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज के बारे में हमने बताया हुआ है, इट इज सिंगल सेल, इट इज वेरी वेरी फाइन, thick and made up of single cell thick blood vessels. Blood capillaries are very fine, very thin, single cell thick blood capillaries. जब single cell thick है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, सिलेक्टिव, सेमी एंड सिलेक्टिव परमेएबल, तो उसके थ्रू जितने भी नाइट्रोजनस अनवांटेड सब्सटेंस है that have been filtered out in high pressure, that's why it is known as ultrafiltration. इसके दो एंड होते हैं, एफरेंट आर्टरियोल और एफरेंट। इधर से ब्लड आता है और इधर से फिल्टर होकर के निकल जाता है, और फिल्ट्रेट चीज बाउमन्स कैप्सूल होते हुए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होते हुए शरीर से बाहर चला जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही, आपको यहीं पर हम इतना ही समाप्त कर रहे हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट द नेफ्रॉन अलोंग विद डायग्राम। तब तक आप हमारे जो भी हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है उसमें आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हुआ हो, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपने कमेंट्स लिखिए। हम कोशिश करेंगे, हम आप स्वागत करते हैं, वी वेलकम योर ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी कमेंट्स कैसा लगा पढ़ाने में। हम लोग वी विल ट्राई टू improve our mode of teaching in future, ताकि जितना बढ़िया से बढ़िया हो, बढ़िया से मटेरियल और आपके समझ में आ जाए, ऐसे मोड ऑफ टीचिंग की कोशिश कर रहे हैं। तब तक इसको आप पढ़िए और जो भी हमने पीछे पढ़ाया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में आप पढ़िए और देखिए इसमें कहीं कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ छूट गया हो हमसे, हो सकता है, उसको हम ट्राई टू आपको फिर से उसमें जो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।